Hello, my friends and my students. My name is Mr. Jignesh Rana. I am working as an assistant professor in Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, which is situated at Navsari. Our course is also affiliated to Gujarat Technical University, Gandhinagar. Today, I am giving a presentation on inversion of Fourier mechanism. So today, my today covered topic cover is inversion of Fourier chain. First, what is four-bar chain? The simplest and the basic kinematic chain is a four-bar chain or quadratic cycle chain. It consists of four links. Each of them forms a turning pair at A, B, C and D. The four links may be different length. So basically four-bar chain it is a kinematic chain है और उसमें फोर लिंक्स कंसिस्ट करती है. each pair forms a turning pair. चारों के चारों फॉर्म टर्निंग पेयर, चारों के चारों पे टर्निंग पेयर है. इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं सोन फिगर. ए बी फॉर्म अ वन पेयर, बी एंड सी फॉर्म अ टू पेयर, सी एंड डी फॉर्म अ थ्री पेयर, सी एंड डी फोर पेयर. लिंक ए डी इज ए क्रैंक. हियर लिंक 4 इज ए क्रैंक. लिंक ए डी क्रैंक है. द लिंक बी सी, link BC, link 2, which makes a partial rotation or oscillate is ocean, a lever, a rocker or follower. Link BC बेसिकली वो एक दूसरी लिंक है जो सिर्फ पार्शियल रोटेट होती है और या ऑसिलेट होती है, यानी कि अपनी जगह पे सिर्फ घूमती है. ओके, उसे हम लीवर कहते हैं, रॉकर कहते हैं और फॉलोअर भी कह सकते हैं. एंड द लिंक CD3 which connect the crank and lever is कॉल कनेक्टिंग रोड और कपलर. बेसिकली लिंक 3 CD वो क्रैंक लिंक 4 और लिंक 2 विच लीवर दोनों को कनेक्ट करती है. इसीलिए उसको कनेक्टिंग रोड कहते हैं या फिर कपलर कहते हैं. द फिक्स लिंक ए बी लिंक 1 इज नोन एज द फ्रेम ऑफ द मैकेनिज्म. लिंक ए बी हमारे मैकेनिज्म की फ्रेम है जो उससे फिक्स होती है और क्रैंक उसी पॉइंट पे घूमते हैं. ओके, नाउ द इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन. फर्स्ट वन, बीम इंजन, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म. अ पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ए बीम इंजन also known as a crank and lever mechanism which consists of four link. बीम इंजन में फोर लिंक होती है. In this mechanism, when the crank rotates about a fixed center A, the lever oscillates about a fixed center D. इस मैकेनिज्म में जब क्रैंक अपनी फिक्स सेंटर पे ए पे घूमेगी, रोटेट होगी, तब लीवर लिंक 4 ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स सेंटर डी. तब हमारा लीवर लिंक 4 सेंटर डी पे क्या होगा, ऑसिलेट होगा. द एंड ई ऑफ द लीवर सी डी इज कनेक्टेड टू अ पिस्टन रोड. लिंक 4 का ई एन जो पिस्टन रोड से कनेक्ट किया हुआ है, विच इज रेसिप्रोकेट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द क्रैंक. वहाँ से हमें ई पॉइंट से हमें पिस्टन को पिस्टन रोड से कनेक्ट किया हुआ है. जब क्रैंक हमारे रोटेट होगी तब पिस्टन क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा. ओके, अप एंड डाउन हो प्रोसेस मोशन में होगा. इन अदर वर्ड, द पर्पज ऑफ दिस मैकेनिज्म इज कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन. इस मैकेनिज्म का पर्पस है कि रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर सके. ओके, सी दिस इज द एनिमेशन ऑफ द मैकेनिज्म बीम engine, crank and rocker mechanism. The purple color this purple color is known as a crank. Okay, link, this is the connecting rod, is a lever, piston, rod, piston और ये बाहर जो सिलेंडर एंड दिस इज द फ्रेम. ओके, so rotary motion convert of the reciprocating motion of the piston. Okay, now next inversion
The coupling rod of locomotives. The mechanism of a coupling rod, also known as a double crank mechanism, which consists of four links. In this mechanism, links AD and link BC act as a crank and are connected to the respective wheels. The link CD act as a coupling rod and the link AB is fixed in order to maintain a constant center to center distance between them. This mechanism is meant for transmitting rotary motion from one wheel to other wheel. Basically, this mechanism known as a coupling rod of locomotives. Okay, we can say that also double crank mechanism. Okay, इस mechanism link AD and link BC having the same length. इस mechanism में link AD and link BC है, उसकी link की length same है और उसे act और वो किस तरह से काम करती है, एज ए क्रैंक तरीके काम करती है. दोनों लिंक्स दोनों व्हील के साथ कनेक्ट किए होती है, जिसे हम लीवर कहते हैं. ओके, कपलर कहते हैं. तो एंड दिस लिंक CD एज ए कपलिंग रोड वो कनेक्ट किया होता है. लिंक AB वो भी सेम फिक्स होती है. किसके लिए? कि जब हमारा डिस्टेंस घूमेगा तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा. सो दिस मैकेनिज्म मीन फॉर ट्रांसमिटिंग रोटरी मोशन फ्रॉम वन व्हील टू अदर व्हील. ये मैकेनिज्म रोटरी मोशन को एक व्हील से दूसरे व्हील में ट्रांसमिट करने के लिए ही यूज होती है. जस्ट फॉर एग्जांपल इन ट्रेन लोकोमोटिव्स, ट्रेन व्हील्स लोकोमोटिव्स. shown this figure animation. So both the crank having the same length, fixed link and a connecting rod. Okay, next, Watt's indicator mechanism, double lever mechanism. A Watt's indicator mechanism, also known as a Watt straight line mechanism or double lever mechanism, which consists of फोर लिंक. वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म को हम वॉट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं या फिर डबल लीवर मैकेनिज्म भी कहते हैं. इस मैकेनिज्म में 4 लिंक होती है. द 4 लिंक्स आर फिक्स लिंक एट ए, लिंक AC, लिंक CE एंड लिंक BFD. इसमें 4 लिंक है. फर्स्ट वन द फिक्स लिंक एट ए, लिंक AC, लिंक CE एंड लिंक BFD. वो एक सिंगल लिंक है. यहाँ पे 2 लिंक अलग अलग नहीं है. BFD एक सिंगल लिंक है. इट में बी नोटेड दैट BF एंड FD फॉर्म अ वन लिंक. अगेन आई से दैट it may noted that the link BF and FD form a one link because these two parts have no relative motion between them. इन 2 लिंकों में किसी भी प्रकार की कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है. The link CE and BFD act as a lever. यहाँ पे link C and BFD lever की तरह काम करेगा. The displacement of the link BFD is directly proportional to the pressure of gas or steam which act on the indicator plunger. Okay, shown in the figure indicator plunger यानी कि pistons और वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, सिलेंडर में रेसिप्रोकेट हो रहा है. हमारे जो लिंक है BFD उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस और स्टीम विच एक्ट ऑन द इंडिकेटर प्लंजर. पिस्टन प्लंजर के अंदर यानी कि पिस्टन के अंदर जो गैस डायरेक्टली जो गैस का प्रेशर होगा उसी हिसाब से BFD का डायरेक्टली उसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली उसी तरह होगा. ऑन एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैकेनिज्म. चलो अब BFD लिंक ऊपर मूव हो रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ट्रेसिंग पॉइंट E at the end of the link C traces out approximately straight line at E dash. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरी फिगर जो पिंक कलर में डॉटेड से लाइन में दिखाई हुई है B डैश, C डैश, D डैश, E डैश एंड F डैश. तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारे पिस्टन में गैस का प्रेशर बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा मैकेनिज्म का डिस्प्लेसमेंट भी E पॉइंट से E डैश हो जाएगा. तो दिस इज एंड दिस लाइन्स हैव अ स्ट्रेट लाइन, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन में ही वो ट्रेस होगा. ओके, सो थैंक यू and stay home and stay safe. I hope you today you will get a better. Thank you.